بسم الله الرحمن الرحيم جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے قیامت تک سب سے خوشی کا دن وہ تھا جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اور جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک سب سے غم کا دن وہ تھا جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور یہ ہزاروں کائنات تو اربوں سال پرانی ہے، انسانی زندگی 10-12 ہزار سال کی ہے۔ اس میں جو 63 سال میرے نبی کی زندگی کے تھے وہ اس کائنات کی جان ہے، اس سے اعلیٰ نہ پہلے نہ بعد میں۔ عربی کے لحاظ سے ہے 63 سال، انگریزی کے لحاظ سے ہے 61 سال 1 مہینہ 16 دن۔ یہ 63 سال ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، جنوری فروری کے لحاظ سے میں نے سارا حساب کیا ہوا اللہ کے فضل سے، 61 سال 1 مہینہ 16 دن۔ انسان اندھیروں میں تھے، جانتے نہیں تھے کہاں سے آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، موت کیا ہے، آگے کیا ہے، اس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس علم کو لے کر میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، اور سب سے بڑا جو انہوں نے احسان انسانیت پہ فرمایا وہ اس کائنات کے خالق کا پتہ بتایا، تعارف کروایا، اس کی حقیقت بتائی، کیونکہ پہلے مذہب والے بھٹک گئے۔ یہودی پرانا مذہب تھا، انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ کو بھول گئے اس کی حقیقت۔ عیسائیوں نے 50 سال کے بعد، ایک سینٹ پال تھا، یہودی تھا، وہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھا، تو اس نے اعلان کر لیا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام آ گیا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ تو عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، میرے نبی نے کہا قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے۔ واحد نہیں کہا، احد، کیونکہ واحد گنتی میں آتا ہے، واحد اثنین، واحد 1 2، اور احد یکتا، احد اکیلا، احد نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، وہ اکیلا احد۔ کب سے ہے؟ قدیم بلا ابتدا، ابتدا سے پاک ہے، تو کون بتائے کب سے ہے، کب تک ہے؟ دائم بلا انتہا، ابدی ہے، کیسے پتہ چلے کہاں انتہا ہے؟ ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے۔ الاول، اول تو ہے لیکن بلا بدایا، اول تو شروع ہوتا ہے نا ایک، وہ هو الاول۔ پورا سنو، سبح، یہ میرے نبی کا احسان، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کون ہے، اور اللہ کیا کرتا ہے، اور اللہ کی کتنی طاقت ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، کیوں؟ وہ عزت والا، حکمت والا۔ سباحت تیرنے کو کہتے ہیں، تیرنے میں معنی پایا جاتا ہے کہ جب تک اگلی منزل نہ آئے تیرنے سے آدمی رک نہیں سکتا، سانس نہیں لے سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، غڑپ اندر جائے گا۔ کتنے غرق ہو گئے اس طوفان میں، اسے تیرنا ہے آخری کنارے تک،
जब तक कायनात है ये तेरे रब की तस्बीह पढ़ती है पढ़ती है पढ़ती है। तुसी तो लंबे वाले नाम ही पढ़ो तो उन्हें कोई फर्क कोई नहीं पड़ता। और फिर क्या कहा, कुल्लुन कद अलिम सलातहु व तस्बीहहु, सिर्फ तस्बीह नहीं पढ़ते, वो अपने रब की नमाज भी पढ़ते हैं। रब जुल जलाल की कसम, जिस चटाई पर बैठे हो इसका एक एक धागा अल्लाह की नमाज पढ़ रहा है, एक एक धागा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। इस मस्जिद की एक एक ईंट नहीं, ईंट का एक एक एटम, जर्रा जर्रा वो मेरे रब की नमाज पढ़ रहा है, तारीफ कर रहा है। हवा के झोंकों में चलने वाले हवा के जर्रात, वो एक एक जर्रा अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह की नमाज पढ़ता है। बारिश से उदक का उतरने वाला एक एक कतरा नहीं, एक एक कतरे में जितने एटम जर्रात हैं, एक एक जर्रा अल्लाह की नमाज पढ़ता है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। हर दरख्त का हर पत्ता नहीं, पत्ते के अंदर चलने वाली रगें, रगों में चलने वाला रस, उस रस का एक एक जर्रा अल्लाह की नमाज पढ़ता है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। जो फल निकलता है वो भी खामोश नहीं, अल्लाह की नमाज पढ़ता है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। हर मौज पानी की हजारों कतरात के साथ है, समंदर की मौजें हो, दरिया की रवानी हो, और तूफान की तुग़यानी हो, और चश्मों की झरझराहट हो, और बादल की गरज और चमक हो, आसमान की बुलंदियां हो, जमीन की पस्तियां हो, पहाड़ों की सख्तियां हो, रेत की नरमियां हो, पानी की उठान हो या पानी की निशान हो, बुखार बन के ऊपर जा रहा हो, बारिश बन के नीचे आ रहा हो, चार पाँव पे चलने वाले, दो पाँव पे चलने वाले, पेट के बल चलने वाले, मिनहुम मन यमशी अला अर्बा, मिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, मिनहुम मन यमशी अला बतने, पेट के बल चलने वाले, अरब हा अरब, दो पाँव पे चलने वाले, अरब हा अरब, चार पाँव पे चलने वाले, अरब हा अरब, दो परों से उड़ने वाले, अरब हा अरब, समंदर की मछलियां अरब खरब खरब खरब। अल्लाह कहता है सारे ही मेरी नमाज पढ़ते, सारे ही मेरी तस्बीह पढ़ते। वइम मिन शै इल्ला युसब्बिहु बिहम्दे, हर शय तेरे रब को याद करती है, वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम, तुम्हें पता नहीं है वो मुझे याद कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है। हर शय सजदे में, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, ओ पागलो देखो तो सही, या आसमान वाले, जमीन और जमीन वाले सब अल्लाह के सामने सजदे में गिरे पड़े, सब सजदे में गिरे पड़े। कुल हुवल्लाहु अहद, अकेला, कोई शरीक है नहीं, अकेला। अल मलिक ला शरीक लह, कोई शरीक नहीं। अल फर्द ला निद्द लह, बेमिसाल, कोई उसकी मिसाल नहीं। कैसे मिसाल दें, कोई शय हो तो मिसाल दें, बेमिसाल है। अल अलिय्यु ला समीय ला, इतना बुलंद है कि कोई उसके बराबर नहीं। रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फस्तबिर लिइबादतिही हल तालुम लहू समीया। सुभान अल्लाह। पीछे अल्लाह एक दावा लाता है, जमीन का रब अल्लाह, आसमानों का रब अल्लाह, फलक का रब अल्लाह, सूरज का रब अल्लाह, चांद का रब अल्लाह, सितारों का रब अल्लाह, हवाओं का रब अल्लाह, बादलों का रब अल्लाह, फरिश्तों का रब अल्लाह, जमीन का रब अल्लाह, पानी का रब अल्लाह, हवा का रब अल्लाह, आग का रब अल्लाह, और मिट्टी का रब अल्लाह, जबरील का रब अल्लाह, मेकाईल का रब अल्लाह, इसराफील का रब अल्लाह, इजराइल का रब अल्लाह, अर्श के फरिश्तों का रब अल्लाह, जन्नत का रब अल्लाह, जहन्नुम का रब अल्लाह, तेरा मेरा सब का रब अल्लाह, रेंगने वाले, गार में छुपने वाले, और अंदर बिलों में छुपने वाली कीड़ियां, सब का रब है अल्लाह। तो फिर आगे कहता है फस्तबिर लिइबादतिही,
रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा। चींटियां सिर्फ इस मस्जिद दी कीड़ियां गण के भी खा दो। आ जाओ मैदान इस तो 7 जमीनों में कितनी चींटियां चल रही हैं। और मेरा रब क्या कहता है, अपने देखने की ताकत बताता है। मैं तो आगे देख रहा हूं, मुझे पीछे नजर नहीं आ रहा। अब मैं इनको देख रहा हूं, मुझे ये नजर नहीं आ रहा है। मैं इनको देख रहा हूं तो मुझे ये नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख रहा हूं, नीचे नजर नहीं आ रहा। नीचे देख रहा हूं, ऊपर नजर नहीं आ रहा। और मेरा रब अहात बसरुहु बिजमीइल मरईआत। मेरे बंदो, मेरी नजर ने हर चीज को घेरे में लिया हुआ है। ला यादुमन रब्बका मिन मिस्काल जर्रा। जर्रा उर्दू में बारीक चीज को कहते हैं, अरबी में जर्रा एटम को कहते हैं। और एटम 1 सेंटीमीटर का 10 करोड़वां हिस्सा होता है। एडा सारा होता सेंटीमीटर है। तो आज की साइंस कहती है कि एक एटम 1 सेंटीमीटर का 10 करोड़वां हिस्सा। और अल्लाह कह रहा है एटम भी देख रहा हूं। और कहता है फयरा, अरे तुम्हें नहीं देखूंगा, तुमने कुंडी लगा दी, कोई नहीं देख रहा। ला लो ठर्रे दा गिलास है, चोरी कर लो, जिना कर लो, शराब पी लो, जुआ खेल लो, तुमने कोई नहीं देख रहा। यारा क्या देखता हूं, काली रात हो, दबीबन नमलतिस सौदा, काली चींटी हो, फिल लैलतिज़ ज़ल्मा, काली रात हो, अला सखरतिस सम्मा, और काला पहाड़ हो। चींटी काली, रात काली, पहाड़ काला, चट्टान काली, वो कहां? फौक अर्शिही ला तराहुल उयून, आंखों से नजर नहीं आता। आंख तो इत्थों तक देख सकती है। रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड, और ख्याल की रफ्तार है करोड़ों करोड़ों मील फी सेकंड। और मेरा रब कहता है ला तुखालितुहु दुनून, करो ख्याल, दौड़ाओ ख्याल के घोड़े, थक के गिर जाओगे, रब को ना पा सकोगे ना देख सकोगे। या अल्लाह तो इतना दूर हो गया तो साढ़े काम क्या करने का फिक्र ना करूं। दूर इतना हूं ख्याल ना पहुंचे, करीब इतना हूं कि अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी इस रग से ज्यादा मैं तेरे करीब हूं। तू मुझे ऊंची पुकार, मैं लब्बैक कहूंगा। तू मुझे आहिस्ता पुकार, या अल्लाह, वो कह रहा लब्बैक, तुम आहिस्ता पुकारो, या अल्लाह, वो कह रहा लब्बैक, मैं सिर्फ खुद बोलूं तुम ना सुनो। वो कहता है लब्बैक, मैं होंठ सीलूं, जबान तालू से लगा लूं, ना जुबान हिले ना होंठ हिले, दिल से बोलूं या अल्लाह, तो कहता है वो भी सुन रहा हूं, वो भी सुन रहा हूं, वो भी सुन रहा हूं। तो मेरा रब कहता है तेरे रब की आंख कैसी है? काली रात हो, काला पहाड़ हो, काला पत्थर हो, ऊपर एक काली चींटी जा रही है। ये हिक जा रही है या करोड़ों जा रही? एक चींटी है या कितनी है? तो मेरा रब क्या कह रहा है कि मैं चींटी देख रहा हूं? नहीं, रब की कसम, उसकी इज्जत की कसम, उसकी किबरियाई की कसम, मैं कैसे उसकी तारीफ कर सकता हूं। लो कान अल बहरु मिदादा लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलो जीना बिमिस्लिही मददा वलो अन्ना मा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुर मा नफिदत कलिमातुल्लाह। 7 समंदर स्याही बनाओ, पूरी कायनात के हाथों में कलम पकड़ाओ, हाथों में कापियां पकड़ाओ, तो लिखो मेरे रब की तारीफ, लिखो अपने रब की तारीफ, लिखो। 7 समंदर, बहर उल काहिल 14,000 किलोमीटर लंबा है और फिलिपाइन के करीब 11-11 किलोमीटर गहरा है। मैंने बड़े समंदरों में अल्लाह ने मुझे फिराया है और मेरा रब कहता है लिखो लिखो, एक दिन आएगा समंदर खुश्क हो जाएंगे और तेरे रब की तारीफ का जर्रा भी अदा ना होगा। चाहे कितने समंदर और लाओ, फिर और लाओ, फिर और लाओ, फिर और लाओ, क़यामत कायम होगी, तेरे रब की तारीफ खत्म न होगी। तो मेरा रब ये कह रहा है, और मैं कीड़ी नहीं देख रहा, मैं क्या देख रहा? काली रात,
काला पहाड़, काला पत्थर, काली चूंटी के काली टांगों से जो लकीर पड़ रही है वो लकीर देख रहा। वो लकीर तुम्हारे सामने चूंटी चले तुम लकीर नहीं देख सकते। वो कह रहा मैं वो अर्शों पे वो लकीर देख रहा हूं। तो ये यहां जो हो रहा है वो नहीं देख रहा, जो यहां हो रहा है वो नहीं देख रहा। जो हाथ चल रहा है जुल्म की तरफ, जो कदम उठ रहा है अय्याशी की तरफ, जो पैसा आ रहा है हराम का, रिश्वत का, चोरी का, डाके का, नहीं देख रहा। ला याज़ु अन रब्बिका मिन मिस्काल ज़र्रा, एक एटम भी छुपा हुआ नहीं है। अहद, अकेला। तो वो फिर आगे कहता है रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा, जब है ही आसमानों का भी अल्लाह, जमीनों का भी अल्लाह, दरमियान का भी अल्लाह, तो फस्तबिर लिइबादतिही, फिर जम जा उसकी बंदगी पर, फिर जम जा उसकी बंदगी पर। क्यों? हल तालुम लहू समिया, कोई मेरे जा होर विखा दे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत दावा है। हल तालुम लहू समिया, कोई मेरे जा होर विखा तो सही, कोई है तेरे रब जैसा। हल तालुम लहू समिया, गूंज है आसमान वालों बताओ। हल तालुम लहू समिया, है कोई अल्लाह जैसा। जमीन वालों बताओ। हल तालुम लहू समिया, है कोई अल्लाह जैसा। मशरिक वालों, मगरिब वालों, शिमाल वालों, जनूब वालों, ऊपर वालों, नीचे वालों, आबी मखलूक, खाकी मखलूक, हल तालुम लहू समिया, कोई है तेरे रब जैसा, कोई है तेरे अल्लाह जैसा। ये एहसान है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने हमें बताया कि कौन है इस कायनात का शहंशाह। वो है, उसका नाम है अल्लाह। बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। अर्श तक नूर चला गया। खुदा ना कहा करो। खुदा अल्लाह का नाम अल्लाह ने नहीं रखा, किसी ईरानी ने रखा है। फारसी का लफ्ज है, दो लफ्जों से बना है, खुदा, जिसे किसी ने बनाया हो। और जब तुम कहते हो अल्लाह, कहो तुम अल्लाह के सारे सिफाती नामों के साथ अल्लाह को पुकारते हो। मैंने कहा अल्लाहुम्मा, देख रहे हैं, मैंने कहा अल्लाहुम्मा, लेकिन मेरे रब की कसम, इस अल्लाहुम्मा में मैंने कहा है अर्रहमान, अर्रहीम, अल मलिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम, अल मोमिन, अल मुहैमिन, अल अजीज, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, अल खालिक, अल बारी, अल मुसव्विर, अल गफ्फार, अल क़हार, अल वहाब, अल रज़्ज़ाक़, अल फ़त्ताह, अल अलीम, अल क़ाबिज़, अल बासित, अल ख़ाफ़िद, अल राफ़िअ, अल मुइज़्ज़, अल मुज़िल, अल समी, अल बसीर, अल हकम, अल अदल, अल लतीफ़, अल ख़बीर, अल हलीम, अल अज़ीम, अल गफ़ूर, अल शकूर, अल अलीयुल कबीर, अल हफ़ीज़ुल मुक़ीत, अल जलीलुल करीमुर रक़ीबुल मुजीबुल वासिअ, अल मजीदुल बाइफ़, अल शहीदुल हक़, अल वकीलुल क़वी, अल मतीनुल वली, अल हमीदुल मुहसी, अल मुब्दिल मुईद, अल मुहयिल मुमीत, अल वाजिदुल माजिद, अल वाहिदुल अहद, الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله. कहो या अल्लाह, आपने इतने नामों से अल्लाह को पुकार लिया। ये हमारे मौलवी भी खुदा कहते हैं, ये भी अल्लाह नहीं कहते। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह रफ़अस समावाति बिगैर अमदिन तरौनहा, अल्लाह हुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह अलिफ लाम मीम, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह अलल अर्श इस्तवा, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, लहू मा फ़िस समावात व मा फ़िल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत अस-सरा वइन तजहर बिल क़ौल फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा। ये कौन है जिसकी तारीफ हो रही है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह
لا الہ الا ہو لہل اسماء الحسنى، ساری کائنات جھکائی ہوئی ہے اس نے اپنے سامنے. کہتا حل تعلم السمیہ، وہ ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ لہذا حل تعلم لہو سمیہ، کیا جملہ ہے اللہ کی قسم. حل تعلم، کوئی کائنات میں دعویٰ کر کے دکھا دے حل تعلم لہو سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا. العلی لا سمیع لہ، کوئی المدبر بلا مشیر، ساری تدبیر کرتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں، کوئی مشاورتی کونسل کوئی نہیں، کوئی جماعت کوئی نہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین، زمین سے آسمان تک اکیلا نظام چلاتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں. القاہر، سب پہ قابو ہے، بلا معین، کوئی مددگار کوئی نہیں. الملک، شہنشاہ ہے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے. احق من ذکر، سب سے زیادہ یاد کے قابل اللہ. احق من عبد، سب سے زیادہ بندگی کے قابل اللہ. اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ. ارأف من ملک، سب سے بڑا مہربان اللہ. اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ. هو الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمیع لہ، کوئی اس جیسا نہیں، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کو بقا ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز نے مرنا ہے، اسے زندہ رہنا ہے. پھر کل نفس ذائقۃ الموت، اور آگے پہلے کل من علیہا فان، یہاں پھر اس کو بڑھایا کل شیء ہالک، کل شیء ہالک، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر اس کو اور کھلا کیا کل شیء ہالک الا وجہہ، سب مر جائیں گے، وہ زندہ ہوگا. سب کو مار کے زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اکیلا ہوگا. جبریل بھی مر گیا، میکائیل بھی مر گیا، اسرائیل بھی مر گیا، اسرافیل بھی مر گیا، عرش کے فرشتے بھی مر گئے، ساتوں آسمان کے فرشتے بھی مر گئے، نبی بھی مر گئے، ولی بھی مر گئے، انسان بھی مر گئے، جنات بھی مر گئے، جانور بھی مر گئے، ہر روح والا، ہر جاندار بے جان سب مر گئے، فنا. اور وہ اکیلا کہہ رہا ہے میں ہوں الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کتنے ہو؟ ہم لوگ بادشاہ کتنے ہو؟ وہ کہتا ہو بادشاہ کدھر ہو؟ این الملوک، کدھر ہو؟ این الجبارون، یہ جو آج ظلم کرتے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں. وہ یہ مافیا ہوں، وہ یہ چور ڈاکو ہوں، وہ دہشت گرد ہوں، ان کم بختوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی قبر میں کیسی آگ جلا رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے، نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ظلم پر قبر میں کیسی آگ جلتی ہے. یہ وہ نہیں، اس لیے نشے میں ہیں. این الجبارون، وہ کدھر ہیں آج ظالم؟ پھر کہتا ہے این المتکبرون، ایڑی مار کے چلنے والے، گردن اکڑا کے چڑھنے والے، تکبر والے کدھر ہو؟ لا تمشی فی الارض مرحا، ارے پاگل دیوانے، پیٹ میں تیرے پخانہ، مسانے میں تیرے پیشاب، آنتوں میں تیرے گندگی، تو زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتا ہے جب تو ایڑی مار کے چلتا ہے؟ انک لن تخرق الارض، تو میری زمین کو پھاڑ دیتا ہے ایڑی مار کے، اور تو ایسے گردن اوپر کرتا ہے. ولن تبلغ الجبال طولا، کیا تیرا قد پہاڑوں سے اوپر چلا جاتا ہے؟ یا تیری ایڑی سے میری زمین پھٹتی ہے؟ اور تیرے اندر تو میں نے پخانہ ڈالا ہوا ہے، پیشاب ڈالا ہوا ہے، گندگی ڈالی ہے. چند دن کے بعد تیری روح نکالوں گا، تو ایک مردار جثہ ہوگا، باہر رکھو تو بدبو سے سارا شہر پریشان ہو جائے گا، اور قبر میں تیرے اوپر کیڑے مسلط کروں گا جو تیرے پنجر کو الگ کر دیں گے، تیری بوٹیوں کو الگ کر دیں گے.
कब्र की तपिश तेरी हड्डियों को भी गला दे। अइज़ा कुन्ना इज़ामन नखीरा, जब हमारी हड्डियां भी चूरा चूरा हो जाएंगी, क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन खासिरा फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। अल्लाह मेरे नबी का एहसान, कुल हुवल्लाहु अहद, अकेला। वो गुजारा कैसे करता है? अल्लाहु समद, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज। वो मकान देखो, हम सारे जात है ना, अल्लाह भी एक जात है, हमने जगह घेरी हुई है 2 फुट 2.5 फुट। अल्लाह का ना अव्वल है, ना आखिर है, ना इब्तिदा है, ना इंतहा है, तो वो जमाने से भी पाक है, मकान से भी पाक है। मकान तो मखलूक है और मखलूक में खालिक नहीं आ सकता, वो ला मकान है, वो ला जमान है। तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। वो कैसे मैं बयान करूं कि एक जात है जिसको देखना चाहूं उसके अव्वल को, मेरी क्या औकात है? 1.25 लाख नबी और नबियों के रसूल भी रब की ना इब्तिदा देख सकते हैं, ना इंतहा देख सकते हैं। वो इब्तिदा से भी फाक है, इंतहा से भी फाक है। अस-समद, सब मोहताजो, अस-समद वो बेनियाज है, अस-समद सब की जरूरत है तुम्हारा रब, वो तुम उसकी कोई जरूरत नहीं हो। आसमान अपनी कुदरत से बनाए, अपनी शहनशाही के लिए आसमान जरूरत नहीं, कुर्सी जरूरत नहीं, अर्श जरूरत नहीं, फरिश्ते जरूरत नहीं, जमीन जरूरत नहीं, आग पानी हवा मिट्टी उसकी जरूरत नहीं, उसी का कब्जा है। कैसा बेनियाज है? लम यलिद, किसी का बाप नहीं है, वलम यूलद, किसी का बेटा नहीं है, मत्तखज़ साहिबा, ओ मेरी बीवी कोई नहीं, वला वलदा, मेरा बेटा कोई नहीं, अन्ना यकून लहू वलद, पागलो बेवकूफो, वो किधर से मेरे बेटे तुमने बना दिए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उसकी मिसाल बताओ भाई। अल्लाह कहता कोई मिसाल हो तो मैं बताऊं, मेरी मिसाल ही कोई नहीं, मेरी मिसाल ही कोई नहीं। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है जब अल्लाह सामने आएगा, पर्दा हटाएगा और कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, मेरे बंदो आज तुम्हारा रब, मेरी बंदियों आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, जब अल्लाह अपना पर्दा हटाएगा, जब जन्नत वाले जन्नत में और सारे जन्नती अपनी अपनी जगह में, तो फरिश्ता ऐलान करेगा अल्लाह की ज़ियाफत है, जमा हो जाओ। सारे जमा होंगे, एक मैदान है जन्नतुल फिरदौस में, उसका नाम मजीद है। जिब्रील आए एक शीशा लेकर, या रसूल अल्लाह ये शीशा, इसमें ये नुक्ता अपने देखने कहा का ये क्या है? कि ये मैदान मजीद है, इसका नाम है मजीद। इसकी घास जाफरान की है, पर पीली नहीं, सफेद रंग की घास है, और ये अल्लाह के दीदार की जगह है। और मैं जिब्रील जो यूं करो तो अर्श से यहां पहुंच जाते हैं, यूं 1 सेकंड में जिब्रील सिदरतुल मुंतहा से ईदगाह की मस्जिद में पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं इस मैदान में साल हा साल उड़ा हूं, मुझे नहीं पता कहां शुरू होता है कहां खत्म होता है। ये मेरे रब के दीदार की असेंबली है। ईमान वाले मर्द एक तरफ, औरतें एक तरफ, ईमान वाले सारे उम्मती अपने अपने नबियों के साथ, और सारी औरतें हजरत खदीजा अज़वाज मुतहरात सैयदा फातिमा के साथ। और अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे मेहमान आए हैं, खाना खिलाओ। जब वो खाना खाएंगे तो कहेंगे जन्नत का खाना तो एवं ही है, जन्नत का खाना। फिर अल्लाह फरमाएगा इस्क़ूहुम, पानी पिलाओ। तो अल्लाह के दस्तरखान का पानी पीकर सबसे आला चश्मा तस्नीम है, तस्नीम। ये देखा, इतनी सी तरी लगी, आपको नजर भी नहीं आ रही, इतनी सी तरी तस्नीम की लेकर आसमान पे बैठ के यूं कर दे, उस आसमान से जमीन तक खुशबू फैल जाएगी। जब अल्लाह के दस्तरखान पर पिएंगे तो कहेंगे तस्नीम भी कोई शाय कोई नहीं। फिर अल्लाह कहेगा फक्कहूहुम, फल खिलाओ।
यही होता है ना, खाना आता है, पानी आता है, फिर मीठा आता है, तो मीठे में ना खाते करो सेवियां ते आप ना मुरादानियां फिरनियां, इतने ढिड हो जाएगा थोड़ा। अल्लाह को बड़े पेट वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मौलवी हो तो होर ही बड़ा लगला। तो अल्लाह कहेगा फल खिलाओ, तो जब वो फल खाएंगे तो फाकिहतन मिम्मा यतखय्यरून, जो अल्लाह कह रहा है आला किस्म के फल, कहेंगे ये फल तो फल तो कुछ भी नहीं है, फल तो ये है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे मेहमान आए हैं, शाही दरबार है, शाही दरबार के लिबास के आदाब होते हैं, इनको शाही लिबास पहनाओ। तो ना पावन दी लोड़ है ना लावण दी लोड़ है, एक ऐसे चमक उठेगी और सबके लिबास तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह के दरबार के शायान शान वो लिबास होगा, तो कहेंगे जन्नत दे लिबास टाट दे कपड़े ही हैं। फिर अल्लाह कहेगा तय्यबूहुम, और फिर ये भी एक है बड़ों के दरबार में जाने का कि परफ्यूम लगा होना चाहिए, खुशबू होनी चाहिए। हमारे नबी को खुशबू बड़ी पसंद थी, तो एक हवा चलेगी, उसका नाम मेरे नबी ने बताया मुसीरा। वो हवा आपने फरमाया हर जन्नती मर्द औरत को खुशबू लगाएगी, और फरमाया तेरी बीवी दुनिया में तुझे ऐसी तरह खुशबू नहीं लगा सकी जैसी वो हवा तुझे खुशबू लगाएगी। अब जब ये सब मुकम्मल हो जाएगा तो अल्लाह कहेंगे मेरे बंदों ने खा भी लिया, पी भी लिया, फल भी खा लिए, कपड़े भी पहन लिए, खुशबू भी लगा ले, क्यों भाई राजी हो? या अल्लाह बड़े राजी हैं, मेरे वादे पूरे हो गए? कि या अल्लाह सारे पूरे हो गए। कि नहीं, इन्न लकुम इंदल्लाहि मौइद युरीदु अन युंजिज़कुमूहु, अल्लाह खुद फरमाएगा एक वादा अभी बाकी है जो पूरा नहीं हुआ। वो कहेंगे या अल्लाह वो कौन सा है? अलम तुबय्यद वुजूहना व तुज़हज़िहना अनिन नार व तुदखिलनल जन्नात। या अल्लाह वादे तो पूरे हो गए, तूने दोज़ख से बचा लिया, तूने जन्नत में पहुंचा दिया, और तूने अपनी रजा नसीब फरमा दी, बाकी क्या रह गया है? तो अल्लाह ताला कहेगा सुनो, आवाज आएगी अब बंदों को नहीं, या रिजवान, जन्नत का जीएम सीओ आदम है मौली एहतशाम साहब, सीओ फाउंडेशन है, तो जन्नत का सीओ, जन्नत का जीएम, अल्लाह कहेगा या रिजवान, उसका नाम है इरफल हुजब बैनी व बैन इबादी व ज़ुव्वारी, मेरे और मेरे बंदों के दरमियान पर्दा हटा दे। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नती कैसे बने? उहद की लड़ाई में हार हुई, उम्मे अमारा सामने आ गई, औरत है, इधर बेटा हबीब बिन जैद और उधर बेटा अब्दुल्ला बिन जैद, दो बेटों के साथ माँ सीना सपार हो गई। कहा कि ऐ मेरे बेटो, आज अगर मेरे नबी को जख्म लगा तो मरते दम तक मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। और अब्दुल्शाह सवार था जिसने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वार किया था और कंधे पर तलवार मारी, जिसका जख्म 1 महीने तक रहा। उस पर हमला करने वाली सिर्फ उम्मे अम्मारा थी, जिन्होंने आगे बढ़कर उसके वार को रोका। वो शहजोर था, ये बेजोर थी, वो सवार, ये पैदल, वो लोहे की जीरों में, और ये वैसे ही थी। तो उन्होंने 2 दफ़ा उस पर तलवार मारी, लेकिन दोनों दफ़ा तलवार बेअसर हो गई। लेकिन ये औरत जब वो बेबस हो गया, तो जब तलवार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर पड़ी है और उसने भी तलवार मारी कंधे पर, खुद के कंधे पर जख्म आया, सीना सपर रही है। जब तक गिरी नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी को चढ़ने नहीं दिया। अबू तला अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे छा गए कि सारी कमर तीरों से भर गई, लेकिन अल्लाह के नबी पर तीर नहीं आने दिया। उनको खींचा तो तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु सामने आ गए, अपना हाथ आगे कर दिया, सीधे हाथ पर तीर सहते रहे, सारा हाथ छल हो गया, सारा हाथ बेकार हो गया और काफिरों ने घेरे में ले लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्म की वजह से बेहोश हो गए थे, कुछ बेहोशी और कुछ होश था। हज़रत तलहा ने अकेले कुफ्फार को घेरे में को तोड़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और दौड़ लगाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलहा तेरे ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। फिर काफिर पीछे भागे, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे में ले लिया,
फिर हजरत तलहा ने बिठाया और फिर तलवार ले ली और बिफरे हुए शेर की तरह हमलावर हुए। फिर कुरैश को छान कर रख दिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, फिर दौड़ लगाई तो आपने कहा, तलहा तुझ पर जन्नत वाजिब हो गई। फिर इसी तरह काफिरों ने घेरे में ले लिया और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाकर फिर उन पर हमला किया। इस तरह 3 दफ़ा हमला किया। दौड़ते हुए ओहद पहाड़ पर चढ़े, जबकि सारा हाथ लहूलुहान हो चुका था। आखिरकार एक गार था, उसके अंदर जाकर लिटा दिया, दीवार से टेक लगाई। जो ही आपकी कमर ओहद के पहाड़ से लगी और जो ही ओहद को पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इतना हिस्सा जो कमर मुबारक पर लगा था वो स्पंज की तरह नरम तकिए में तब्दील हो गया। इससे पहले तकादा रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जो तीर आए आगे हो जाए, जो तीर आए आगे हो जाए। एक तीर आया और सीधा हजरत कतादा की आंख में लगा और आंख कीमा कीमा होकर बाहर आ गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए और फरमाया, ऐ अल्लाह, कतादा की आंख मेरे नबी की हिफाजत में ज़ाय हो गई। आपने तीर निकाला, सारी आंख बाहर आ गई। आपने सारे उसके मलबे को इकट्ठा किया और उठाकर आंखों में रखा और ऊपर से अपने हाथ को रखा और फरमाया, ऐ अल्लाह, कतादा की आंख तेरे नबी की हिफाजत में ज़ाय हो गई। ऐ अल्लाह, इस आंख को दूसरी आंख से ज़्यादा खूबसूरत कर दे। ये कहकर हाथ फेरा। जब हाथ हटाया तो यह आंख दूसरी आंख से ज़्यादा हसीन हो चुकी थी, जगमग कर रही थी। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर जख्म लगाए। उन्होंने आने वाले तीरों को आंखों में लिया, तुमने उसी के तीर उसी के सीने में चुबा दिए। उन्होंने तलवार के नेज़ों के जख्म अपने जिस्मों पर सहे और हमने अपनी तलवारों और तोपे का रुख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के रुख की तरफ कर दिया। फिर भी हम कहते हैं कि हम जलील क्यों हैं, हमारी मदद क्यों नहीं हो रही। अरे हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी खलवत क्या है, मेरी जलवत क्या है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को साथ लो, अल्लाह ताला को साथ लेना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बनो, उनके पीछे चलो। तो ये सीखना पड़ेगा, ये घर बैठे मिलने का सौदा नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ, तौबा करो।